So basically, what is human eye? It's like camera, is not it? Now backside is blur. So eye has automatic adjustment. ये काला काला दिखाई नहीं मिल रहा कुछ भी. क्या हो गया? आँख तो खराब नहीं हो गया? थोड़ा दिन जिम मैंने when you bring the closer the pen, तुम लोग blur हो गया. Power of accommodation. So hello my dear everyone. Today we are going to start a very new chapter. That is what? Human eye and the colorful world. This is the next chapter in the physics syllabus. Okay. First chapter we have discussed, that is about light. If everything is clear in light and this is pani, there is nothing in this topic. That's a very easy chapter, very interesting and very fundamental, means very simple. Okay, it's kind of little biology type. You have to remember something, you have to know something, some fact is also there. So these are the following topics we are going to discuss in the chapter, which are this mainly. Firstly, we are going to start about introduction. What is human eye and the colorful world? About the eye, human eye and all parts and all. This is introduction. What is mainly we are going to study in this chapter, introduction, which I am doing now. So parts of human eye. So basically everything has a part. Mobile phone has a part. The camera has a part. Lens, it's not a lighting flash. Everything has parts. So human eye also have various parts: retina, crystalline, and cornea, as well as ciliary muscles, iris, pupil. This is the various part. Like in the camera, there's lots of parts, shutter speed and all. So this is similarly, there's lots of parts are there in our human eye also. That we are going to deal in this topic. Okay, I'm just giving a summary of the chapter. What mainly we are going to deal in the chapter to build a kind of interest within you, that what mainly we're going to study here. The third topic is your accommodation, power of accommodation. What is accommodation? This word might be new for you, isn't it? Accommodation means adjustment. Accommodate, to adjust yourself. Eye has the power to adjust itself. If I want to see closer object, I adjust. The backside becomes blur. If you see me and you catch a pen, it becomes blur. Yes. See, observe, yeah. Yes. I am blur. Now focus here. I am now backside is blur. So eye has automatic adjustment. Even nowadays the great cameras also have the autofocus. Yes. Autofocus. You are here, nothing, whatever be there. I want to focus here, that this will focus. Whatever be backside, it is blur. So it's called autofocus. And this auto adjustment, I am using a very simple term to make you feel with the chapter. You can learn each and every word, attachment with your mind. Okay, I don't want to indulge you to buy out something. Just feel it. You can write whatever extent you want to. So you can feel it, yes. Isn't it? Accommodation means the adjustmental power. To adjustment in its all focal length. It's called power of accommodation. Clear? And eye has a special property. We don't have to fix the lens. Kang. Isn't it? Clear? Very good. The next is that the various defect of human eye. The next important topic. So obviously everybody has everything is defect. When camera, whatever, liver, kidney, everything has a defect in some period of time. If you don't take a proper care of that important things. So human eye also have some defects. On the long run, it may suffer from some problems. Like some are there, they cannot able to see the far object, but nearby object he can see. For that he will use spectacles for it, isn't it? And such person who cannot see the far object but can see the nearby object, can see the nearby object clearly, but cannot see the further object nicely or clearly. That is called myopiatic defect. What defect? Myopia. अब कैसे याद रखने का इसको भूल जाएगा ना? Myopia confuse होगा, obviously confuse होगा हम लोग. So I will give a special tricks to remember also. So it will be very benefit for you. तो example, myopia जो सामने को दिखाई मिलता है लेकिन दूर को दिखाई नहीं मिलता है. Hypermetropia जो सामने को दिखाई नहीं मिलता है लेकिन दूर को दिखाई मिलता है. इसका opposite है. लेकिन presbyopia dual बुढ़ा में होता है वो चीज़. When the person is aged, in this case this defect has been seen. Myopia, how will you remember? Myopia मतलब myo means मेरा, प्यार आ रहा है नहीं? मायोपिया मतलब मेरा प्यार. तुम हमेशा अपना प्यार को क्या सामने देना चाहता कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? मायोपिया मतलब मायो मीन्स मेरा प्यार सामने रहो. That means what? So from this word, from the statement that I have given to you, you can remember the word कि मेरा प्यार को हमेशा सामने देखना चाहते हो. That is myopia means what? The person who can see the nearby object but cannot see the distant object or दूर का object or far distant object. Clear? Yes. Fantastic. So ये याद रखो तो hypermetropia तो याद ही रहेगा ना, उसका opposite है ये कि नहीं? ये ट्रिक. दिमाग से गेम खेलो. दिमाग से एक ऐसा गेम बनाओ दिमाग को ना कि देखो ये बच्चा सब लोग अगर यही बात नहीं बोलता तो कन्फ्यूज होता. अगर ये बात हम नहीं बोलता, अगर ये सेंटेंस अब क्या होता, कन्फ्यूज होता, याद करता बार बार क्या क्या करता ना,
है कि नहीं? लेकिन आज आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग में एक तो मतलब फनी क्रिएट कर देना, एक फनी चीज़, लेकिन इसमें एक भूल नहीं पाएगा इसको, मतलब ना भूल सकने से भी भूल नहीं पाएगा, ऐसा टाइप का होगा. ओके, दैट इज व्हाट. सो ह्यूमन ब्रेन इज वर्किंग इन सच वे. आई विल डिस्कस द ह्यूमन ब्रेन ऑल्सो. सो ये है चीज़ मायोपिया. क्लियर हो गया? सो सेम थिंग इज दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट. So we have learned about a refraction in light, outer light, reflection and refraction. So what is happening in our eye? Refraction. Light passes through it, is not it? So hey, have you seen the formation of rainbow? How? So to know the formation of rainbow, we have to understand the how is the reflection takes place through a glass prism. Glass prism, you know, is a tetra, means ऐसा shape का होता है. हाँ, triangular rectangular shape होता है इसमें. So is the perfect example I can give. इसमें क्या होता है? When white light falls on it, white is scattered over the 7 colors. Why? What is the reason? What is the reason? And how do we know the light has 7 color? Who did it? Newton did it. Isaac Newton. He found that white color, white light consists of 7 different color. Means 7 different color. If you mix, it summarize, you will get a white light. Who was the first scientist for that? Isaac Newton. He carried out, carrying 2 different glass prism. They use it. So very interesting. ऐसा क्या था? बहुत अच्छा दिमाग लगाया है. और when he used the fast prism, जब white light आया, क्या 7 कलर निकल गया यहाँ से? कितना निकल गया है? 7 कलर निकल गया. He was shocked. हम क्या दिन में सपना देख रहे क्या? How it is possible, man? How it is possible? How it can happen? तो वो क्या और एक उल्टा करके लगा दिया, ऐसे करके एक प्रिज्म. दिमाग लगा दिया. तो वापस क्या दिखा? अच्छा वो चौक गया, वो फिर से व्हाइट लाइट उसको मिल गया वहाँ पे. तेरे दिमाग बटी जला उसका दिमाग. अरे भाई, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर. मीन 7 कलर मेक्स व्हाइट कलर. इससे वो एक नया लॉ बना दिया. वो एक नया एक्सपेरिमेंट आइजैक न्यूटन का. समझ में आएगी ना? ऐसे मतलब पगलामी करते हैं, नया कुछ बन जाता है, वो हम लोग का नाम है कि नहीं? हम लोग पढ़ रहे हैं रात दिन उसको, है कि नहीं? तो ऐसे पगलामी कर देता है कुछ, है कि नहीं? बदमाशी कुछ कर देता है, मिल गया ओ ये, तो उसको मालूम चला नहीं रेनबो से बनता है, तब से निकल गया ये रेनबो से बनता है. बुक में छप गया तुम लोगों का, पढ़ो रात दिन उसको. लेकिन फेनोमेना बहुत ईजी है इसका. फेनोमेना इज वेरी इजी, नेचुरल थिंग, बट हम लोग को कोसना पड़ता है रात दिन उसको, है कि नहीं? बर्डन, पढ़ाई बोझ हो गया. अरे इंटरेस्ट लो ना उसको, कितना मजा नहीं है क्या? सोचो तो रेनबो कैसे बनता है, तुम लोग को दिल में जगता है कि नहीं कैसे बनता है, सीखेगा इस चीज़ को. लेकिन उसी के एग्जाम को आएगा टॉर्चर, आया वो लाइन लिखना पड़ेगा, पता तो है लेकिन वाई लेकिन बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंसिव वोकैबुलरी, ये है प्रॉब्लम. अदरवाइज यू हैव नॉलेज, ये है नॉलेज हाउ इट फॉर्म. नहीं पता आपका आँख के बारे में? पता है लाइन आते देखते हैं हम लोग, क्या जैसा मैंने आँख खराब है. वो तो 5 दुकान को ही मालूम है कि नहीं? लेकिन क्या खास क्या है आप लोगों में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योर नॉलेज एंड देयर नॉलेज? वो लोग ही पता है सामने मत देखो, वो मत करो. दे आल्सो नो द रेगुलर प्रिकॉशन, बट व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल नो द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट. यू विल नो इट. व्हाट इज द रीजन? व्हाई डू वी हैव टू वेयर स्पेक? कैसे होता है? रीजन क्या है? एक्सप्लेनेशन समझाने बोला है तो नहीं समझ, लेकिन जानता है, हम जानते हैं फ़र्क क्या है. यू आर क्वालिफाइड, क्या फ़र्क है? यू कैन सी द रीजन, यू कैन सी. सब लोग नहीं पता है क्या फिल्टर में पानी डाल दो पानी गिरेगा, पता है ना? हाँ, जब बादल होगा बारिश गिरता है, लेकिन क्या होता है? वजह क्या है? वजह क्या है? सो दिस इज द रीजन. सो वजह, फॉर वजह यू आर स्टडिंग. नहीं तो रीजन सबको पता है ना. वजह को एक्सप्लेन करने का तरीका ही तो पढ़ने के लिए आया यहाँ पे, ठीक है नहीं? सो वजह को पढ़ रहे हैं हम लोग. That is science. Very good. So next is what? Atmospheric refraction. Means atmosphere में refraction होता है, जैसे ग्लास में refraction होता है, पानी में refraction होता है. I gave you this demonstration with a glass and a pencil. You can see there's refraction. टेढ़ा हो जाता है थोड़ा ना. तो बादल भी तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. It contains a lot of droplets of water. Ice है कि नहीं? तो बादल नहीं होगा. बादल आसमान में बहुत सारा particles, lots of particles are there. तो उसमें क्या रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ना? तब क्या होगा? आसमान हम लोग के लिए तो ब्लू ला रहा है, लेकिन वही साइंटिस्ट अगर ऊपर जाएगा तो उसके लिए ब्लैक. अजीब नहीं लग रहा है हम लोगों को? हाँ, इट इज हैपनिंग. दिन में ब्लू, इट इज ब्लू ड्यूरिंग डेज, बट ड्यूरिंग नाउ इट इज वाइट, इट इज क्लाउडी आउटसाइड, नाउ इट इज वाइट. ड्यूरिंग नाइट इट इज ब्लैक. क्लाउड में होने से ब्लैक, क्लाउड नहीं होने से ब्लैक. ऐसा क्यों? हैव यू थॉट दिस वन? सो वी आर बाउंडेड आवर थॉट्स. वही तो बोला ना, थॉट ही नॉलेज है बोला ना. हम सोचता नहीं है, सोचने से ये सब क्या सोच के तो लिखा है ना. समझ में आया क्या ना बात? जो सो व्हाई इट इज हैपनिंग? क्यों स्काई ब्लू है?
ये मजा लग गया। तो नेक्स्ट है कि तारा टमटमाता क्यों है? हाँ, चमकता क्यों है? Why that twinkle star? क्या twinkle? So twinkle star is twinkling. Why the star is twinkling? What is the reason? Scientific reason क्या है? We are going to study here. क्या reason है? Next है sunrise and sunset. पता है कि नहीं? सनराइज हमेशा 2 मिनट पहले होता है, सनसेट भी 2 मिनट बाद, मतलब जल्दी देर से होता है। क्यों जल्दी होता है? सनसेट कैसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? And why the color of sunset and sunrise is red? During start become yellow, then white, midnight, midday. Why it is happening? Understood or not? So these are the things we are going to study here. Next, scattering of light. Scattering means what? हाँ? Scatter means आपका मतलब किसी को scatter मतलब क्या समझा रहा आपको? Take it off lights, ठीक है? रात को जहाँ धूली है वहाँ पे तुम टॉर्च मारा तो क्या होगा? आपको पाथ दिखाई मिला, पाथ। You can see the path, lots of dust उड़ रहे हैं, है कि नहीं? That means that dust were scattering, that showing, that reflecting. Scatter मतलब reflecting the light path. That is called scattering. Means showing off the light path. Showing off any path is called what? Scatter. चमक, उजाला कर देना, उस चीज़ को मतलब चमका देना चीज़ को। समझ में आ रहा है ना? So when you pass the light through water, आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा, रे देखने नहीं मिलता है। When you pass the light through the milk तब लाइन दिखाई मिलेगा आपको एक। So why it is time? Why we can see the corridor of the light passes through the milk bottle? Because the milk is reflecting, or the milk is scattering the light. That is why we can see the path across the bottle of the water, or bottle of the milk. It's the reason. So this is what we are going to study about. Tyndall effect. Tyndall effect means what? वही हम बोला ना, किसी घर में अगर फूंकता है, देखो जब रोशनी आएगा, पुंग रे दिखाई मिलता है कि नहीं, ऐसे करके कैनोपी होता है कि नहीं इधर पे। अब लोग घर में बेरा है, कुछ है, वेंटिलेटर है, तो वेन द रे कम्स यार, चुंग गोल आता ना, एकदम एक्समैन जैसा नहीं आता, एक्समैन का जैसा नहीं फेंकता रे, ऐसा नहीं आता चुंग करके। हाउ इट इज हैपनिंग? क्यों होता है ऐसा, है कि नहीं? So same thing is here. Now why the color of the sky is blue? Already I have told you, this was we are going to study about. Very interesting. And same thing, the color of sunset and sunrise. Why it is red? Why it is not a different color? Pink, white, yellow. ऐसा कुछ नहीं होता क्यों? So क्या इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं पढ़ के? मजा लग गया? थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा, है कि नहीं? कैसा होगा चैप्टर में, क्या होगा, है कि नहीं? लेकिन इतना बहुत ईजी है चैप्टर, लेकिन वो चैप्टर ईजी है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस parts of human eye. Let us draw it and understand the most basic figure. And it may ask you to draw also. It may come to level the illustrate or level the diagram of a human eye. 5 mark 3 mark आ सकते हैं। So diagram important इतना नहीं है जितना तुम्हारा वो उसका नेमिंग जो प्लेटफॉर्म है ना, नेमिंग प्लेट, वो ज़्यादा important है। So the first topic goes here, the human eye. It's a rough figure of a human eye. So basically, what is human eye? It's like camera, is not it? And it's the most essential, most important part of human life or human being, human body, because it helps us to distinguish every color. The main purpose of human eye is what? It distinguishes color. If you close your eye, you cannot distinguish color. You can't see. We cannot separate the identical objects, the object what you can see around you. All right. So this is the main importance, that we can distinguish color between the red, blue, green, yellow. Clear what I am saying? So why do you think it is so important? Or without this we cannot see means what? How important? You can feel it, isn't it? So what this is the just rough diagram of a human eye, you can see, and we are discussing about the parts of human eye. What are the various parts of human eye? So these are the following parts: the outer layering, the outer transparent body or transparent through with light transparent or refract through, that is called your cornea. Clear? Cornea means the outer body, means outer transparent part layer is called cornea. Next, this lens, no? What lens human eye possess? Convex lens. That is why it form real and inverted image. Clear? So it is a crystalline lens. Means crystalline means what? It is not like a glass का lens नहीं है ये, ठीक है ना? ग्लास जैसा लेंस, ये कुछ माने ये ऑर्गेनिक लेंस है ये, आपको समझेगा अच्छे से। We'll discuss about it. And here what is considered? Is considered some liquid, crystalline liquid होता है, थोड़ा जेली लाइक लिक्विड होता है। इसमें से क्या भरा होता है? ये उसको पुटली बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं इसको? What is there? Liquid होता है, some jelly like substance is there, so that it become a medium through the light to travels through. Liquid होता है, ठीक है? उसमें मछली का देखो आँख कभी दिखा होगा पकड़ के, है ना? जेली जेली होता है कि नहीं? तो ह्यूमन का आँख में भी ऐसा होता है, जेली जेली, ठीक है ना? और ये it provided transparent medium through the light to passes through.
क्लियर हो रहा है कि नहीं समझ में? ऐसा नहीं कि गैस भरा हुआ है तो फूस जाएगा ना, फूस हो जाएगा ना ये. हाँ, ओके. सो वेरी गुड. सो व्हाट इज रेटिना? ये है पर्दा. जैसे कि व्हेन आई यूज द प्रोजेक्टर सम टाइम हियर, सो व्हाट हैपन, वेयर द पिक्चर्स कम्स आउट इन द बोर्ड, द बोर्ड इज एक्टिंग लाइक ए स्क्रीन. यहाँ पर आता है कि ना रे, जो यहाँ पे आता है कि नहीं, तो वो आँख से रे निकल के यहाँ पे आता है, तो ये इसमें है इमेज बनता है. तो हम लोग जो भी देखते हैं, सपोज यहाँ पे गच्छी है, सपोज जैसे गच्छी और जैसे एरो, तो हम लोग का कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है, ये उल्टा बनता है इसका. कैसे बनता है, यहाँ पे ऐसा हो गया ना, ऐसे बनता है, ऐसा बनता है. हुआ है कि नहीं ये? तो ये रियल और इन्वर्टेड हुआ है ना, क्लियर हुआ कि नहीं? एंड द ऑप्टिक मतलब क्या है, इट कैरीज द नर्व इम्पल्स, इट कैरी द इन्फॉर्मेशन. बहुत सारे नर्व होते हैं एंड दिस नर्व इज कनेक्टेड टू आवर ब्रेन, ऑलराइट, एंड इट इंटरप्रेट or it transmit a signal to our brain and make us to see that it is a tree or it is an arrow or it is you, it is he or she. Clear or not? So very simple. It is clear now. Pupil. What is pupil? Pupil means what? It is the part through which the excess part through which the light travels through. Okay. जब हम लोग लाइट ज़्यादा होता है सो प्यूपिल छोटा होता है हम लोगों का. आँख का देखो, आँख का अंदर में कला घोटी होता है. तो अगर ये आँख है, सपोज अगर ये किसी का भी आँख है, वट एवर, ओके ओके, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा दिखाई मिलेगा, ये गोल होगा ऐसा करके. अब देखोगे ऐसा करके, ऐसा है, ऐसा है कि ना, बहुत सारा देखो, ऐसा होता है कि ना, इफेक्ट है कि ना. that central, that black part ना, it is called your pupil. What? Pupil. When you go in darker place, अगर लाइट ऑफ कर देगा, what happen, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ये साइज़ क्या होगा पता है, ये साइज़ थोड़ा सा, ये ऐसा है ना, साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ये सिलरी मसल, ये सॉरी तुम्हारा जो ये होता है ना आइरिस, वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा. वाई इट एक्सपांड, वाई द प्यूपिल एक्सपांड, so that more light can travels, so more light can get into our eye, we can see the object clearly. ऑटो एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग आँख जो, हाँ क्या करता है, ठीक है. सो वही थिंग है, ज़्यादा लाइट होगा तो हम लोग आँख छोटा हो जाएगा, मतलब प्यूपिल छोटा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आइरिस. यहाँ पे आइरिस है, नहीं लिखा है क्या आइरिस, हाँ इसको माना था ये लोग क्या है, आइरिस माना था, आइरिस. और ये कौन होल्ड करता है, हु होल्ड इट, हु होल्ड द लेंस, सिलरी मसल होल्ड द लेंस एक्चुअली, ठीक है, ताकि भागे नहीं तो गिर जाएगा ना टंग करके आँख, ठीक है, मार आँख निकल के आ गया. देखो ए घुसा रे, ठीक है, घुसा रोबोट जैसे. हाँ किस है ना, तो ऐसा आना ना हालात हम लोग का, तो ने उसको पकड़ के रखता ना कुछ. Good. So it is clear now. So this what about the and I will show the individual description. Individual क्या definition है, ये तो आता नहीं actually, तभी जानने के रखना importance है, because it is in syllabus, so it may ask also. Basically it is not asked, so very minor level questions. Okay, what is human eye, working principle of human eye, how does human eye works, so we are going to deal with this. Is one of the most important and sensitive sensor. ये भी एक sense organ है हम लोगों का. Sensitive sense organ means what, it is sense organ, ठीक है, ताकि हम लोग कुछ सेंस कर सकते हैं. हम देख रहे हैं कुछ, हाँ लाल, हरा, सफ़ेद, ब्लैक, तो वी कैन डिस्टिंग्विश कलर थ्रो आवर. जैसे कि टांग इज ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन है कि नहीं, हम टेस्ट करके उसका टेस्ट को मालूम सकता है कि तीता है ना, खट्टा है ना, मीठा है ना, क्या है. बट भाई लेकिन हम देख के, लेकिन हम फील नहीं कर सकते उस चीज़ को. देख के हम लोग कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ओके, सो ऐसा बॉडी में कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है कि हम लोग कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. यू कैन लिव, ए अंधा या ब्लाइंड पर्सन कैन ऑल्सो लिव इन दिस प्लैनेट, कैनॉट लिव और व्हाट, he can also live a very beautiful life. But thing is that only one thing is really missing in this life. वो पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि अंधा है तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं. वो तुमसे ज़्यादा ब्रिलियंट है, हो सकता है, और तुमसे ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकता है. वो गिटार बजा सकता है. एक मास्टर है, ब्लाइंड है, लेकिन वो लिखने पड़ा MA पास किया उसमें. वेयर सी इज़ अ गिटार मास्टर, तो एक गाना गाता है बढ़िया से, बहुत सुंदर सुर है इसका. आप लोग वही लालू पार हो गया, क्लियर हो ना. तो वो ये कि जीसा क्या मीन्स क्या डिफरेंस होगा, एक अंधा इंसान एक नॉर्मल पर्सन का क्या अंतर है. हाँ, ए ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश द कलर, ठीक है. रेड एंड राइट आजकल ब्रेल सिस्टम है कि नहीं, उससे पढ़ सकता है कभी भी. सो ये थी, इट एनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड. हम लोग को ये इतना रंग बिरंगी दुनिया को हम लोगों को निहारने के लिए, हम लोगों को देखने के लिए, टू मेक अस विजुअलाइज द लॉट्स ऑफ कलर्स ऑफ द एंड द कलर अराउंड अस. The main functioning of the
of the eye, our eye. So it is a very sensitive to toward the light. Light नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा. So mainly for every functioning, light is a supreme requirement. अगर light नहीं होगा तो आँख बोलो, कैमरा बोलो, कुछ काम नहीं होगा उसका. समझ में आ रहा है कि नहीं? That ultimately the light is supreme. It makes us to visualize something. समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो? तो वही है. And human eye is like a camera. ठीक है, तो आपको ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन. ऐसा नहीं आएगा तभी टू मेक यू फील. सो बिफोर लर्निंग द वर्किंग मैकेनिज्म व्हाट वी नीड टू लर्न फर्स्टली पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. तो वो पढ़ते पहले. ऑलरेडी यू आई गेव ए है कि नहीं, आई गेव लेवल डायग्राम ऑफ द पार्ट स्पीच है. तो आज थोड़ा सा फिर व्हाट इज द कॉर्निया. कॉर्निया क्या था? इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट. आपको दिखाया था कल, है कि नहीं? सो व्हाट हैपन, दिस इज द आई. ये क्या है? ह्यूमन आई मानो. ओके, सो ये आपका इसका सेकेंड लेयर ऐसा था. ओके, जस्ट फ्री हैंड बना रहे हैं आप लोग मान लो. और ये है आपका एक लेंस, है कि नहीं? ये सो दिस आउटर लेयर ना, थ्रू विच प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट मीडियम ना, एंड दिस आउटर लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड योर कॉर्निया. याद रहेगा कि नहीं? ऐसा है, बहुत ईजी है. अभी याद करो, बहुत सिंपल. इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट. आउटर मोस्ट ट्रांसफर होता है ना, लाइट पास होता है. लेकिन अगर हम आँख बंद कर दिया, नाउ अभी उठा गया ना, नाउ इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, वी कैन नॉट सी. ओके, इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ज़्यादातर रिफ्रैक्शन यहाँ से होता है कि नहीं? क्योंकि ये प्रोवाइड कर रिफ्रैक्शन. ये तो ऑपिक मीडियम नहीं है ना, ये क्या मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है. इतना क्लियर हो गया? याद रहेगा पाएगा? वेरी गुड. व्हाट इज लेंस? नेक्स्ट आता है आपके, इसके बाद में क्या आता है? लेंस आता है कि नहीं? ये एक ह्यूमर भी आता है, ये भी एक पार्ट है. ये लेंस है. सो इट इज कंपोज ऑफ फाइब्रस. अभी क्या वो शीशा का लेंस होता है क्या? नहीं, एक फाइब्रस मतलब नेचुरल, मतलब आपका ऑर्गेनिक लेंस होता है वो चीज़. नेचुरल व्हाट इज, इट इज कंपोज ऑफ फाइबर, जेली मटेरियल से बना होता है वो चीज़ जो. एंड प्रोवाइड द फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. ये क्या फॉर्म करता है आपका? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. समझ में आएगा ना? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रेटिना. कहाँ बनता है? रेटिना भी एक पार्ट ऑफ द आई है. रेटिना ये जहाँ पर स्क्रीन जो बोलते हैं, द स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है, इज कॉल्ड द रेटिना. फील हो रहा है आप लोगों को? पूरा फील हो रहा है? वेरी गुड. सो इफ इट इज प्रोवाइडिंग रियल इन्वर्टेड, द डेफिनेटली वी कैन से व्हाट लेंस इट इज? इट इज कन्वेक्स लेंस. क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि कनकेव तो हो ही नहीं सकता है. कनकेव में तो रियल इन्वर्टेड बनता ही तो नहीं है कि नहीं? तो एक मात्रा एक लौता कन्वेक्स ही है, कन्वेक्स लेंस ही है जिसमें रियल इन्वर्टेड. डेफिनेटली विद द कंक्लूजन ऑफ दिस लाइन वी कैन से दैट द ह्यूमन आई पोसेस व्हाट. हाँ, अगर आपको उल्टा क्वेश्चन दे देगा ऐसे करके, एग्जांपल देखो, हम हर चीज़ एंगल में पढ़ा रहे आप लोगों को, हर एंगल में जैसे भी क्वेश्चन आओ आप लोग कर सकते हैं जिसको. क्यों हाउ कैन यू से? आपका इतना हिम्मत, आप कैसे बोल सकते कि ये रियल वो एक कन्वेक्स लेंस है? क्या तुम आँख खोल के गोटी खेलाए? आप खेल के दिखाई क्या उसको? कैसे है? बिकॉज साइंटिस्ट वांट टू नो द इमेज फॉर्म बाय द लेंस ऑफ द ह्यूमन आई इज रियल एंड इन्वर्टेड. अगर जो लेंस रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, सो वी कैन से दैट लेंस इज व्हाट? Convex lens, because the human lens form real and inverted image, and hence we can say that the lens is a convex lens. ये है conclusion. कौन करेगा तुम्हारा मार्क? Clear? So देखो इधर पे सेंटेंस को लिख दो. तो देखो human eye possess what lens? Convex lens. Very important statement. Very important. ये हमेशा याद रखना. कन्वेक्स होता है. ठीक है? Very good. Fantastic. Now let us go to next part of the human eye. That is your iris. What, my dear? Iris. तो I hope you know what is iris. है कि नहीं? ये अगर आँख है, देखो ये अगर if it is a human eye, ये आपका वो पुतली है ना? और इधर में ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा होता है कि नहीं? अंदर में काला गुट्टी एक होता है, मतलब वही प्यूपिल, वहाँ से लाइट घुसता है लेंस से. और ये है एक आपका विंडो, शटर बोलता है उसको. आप देखना, अगर आप कैमरा खोलेगा तो ऐसे घुमाओ तो शटर दिखाई मिलता है आपको. शटर देखे नहीं? तो जितना आपका फोकस आप क्या करेगा, बढ़ाएगा, इतना छोटा होता रहता है. और फोकस जितना बढ़ाएगा, बस 4 3 2 1 करे तो उसका शटर स्पीड इतना कम जाता है. ऐसा देखता है कि नहीं? ऐसा लेंस में देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है. लेकिन ऐसा शटर होता है ऐसा, ठीक है? ऐसा होता है, ये छोटा होता है. जितना तुम मैंने शटर स्पीड को, मतलब शटर को तुम बढ़ाएगा, मतलब ना फोकस को तुम जितना वो करेगा, खोलेगा, तो क्या होगा? शटर स्पीड थोड़ा ज़्यादा खोल देगा. जितना कमाएगा इतना खोलता है. इतना बड़ा हो गया तो लाइट ज़्यादा घुसने वाला है.
अंदर है तो तुम्हारा उसको बड़ा होता है, ऐसा टाइप का होता है। समझ में आ रहा है ना बात जो? तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो। सो ह्यूमन आई एग्जैक्टली हम लोग को वैसे परफॉर्म कर रहा है, हाउ द कैमरा वर्क, सेम थिंग। इसलिए बोला ह्यूमन आई लाइक अ कैमरा, सेम थिंग वही हो रहा है, अपर्चर से अपर्चर यहाँ पे होगा। सो वो ये आपका आइरिस इज अ शटर एंड इट रियली हेल्प्स दैट हाउ मच लाइट नीड टू इंटर इन आवर आई। ज़्यादा लाइट देखो तुम, अगर देखो ज़रा धूप में जाएगा तो आँख ऐसा हो जाता है तुम्हारा, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा ऐसा होता है आँख छोटा, क्यों आस्ते आस्ते ऐसा करता है कि नहीं, आँख का जो वो अंदर का जो काला काला नहीं होता है क्या, उसको प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि लाइट कम घुसे। आँख खराब हो जाएगा ना, इतना ऑटोमेटिक है एक्शन, इट्स ऑटोमेटिक एक्शन। जब अंदर जाएगा ये काला काला दिखाई नहीं मिल रहा कुछ भी, क्या हो गया, आँख तो खराब नहीं हो गया, थोड़ा दिन जिम वो तो फोकस कर रहा है, आस्ते आस्ते ब्राइटनेस बढ़ रहा है, टी 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 दिखाई मिल रहा है। हाउ इट इज हैपनिंग when you were in the outside heavy sun brightness, so what happened is that आपका आइरिस ज़्यादा ढक दिया था, क्लोज कर दिया, आपका प्यूपिल भी छोटा हो गया था, तो कम लाइट घुस रहा था, है कि नहीं, पूरा कम लाइट घुस रहा है कि नहीं, इतना कम लाइट घुस रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब आप सच घर का अंदर घुसाए, काला दिखाई मिल रहा है, क्योंकि लाइट का इंटेंसिटी कम नहीं है घर का अंदर में। यहाँ पे तो क्या होगा, तब घर का अंदर घुसाएगा क्या होगा, तभी इतना छोटा होता है, आस्ते आस्ते वो मिलते रहते खोलते रहते, तो ज़्यादा लाइट घुसने रहता है अंदर पे, तो क्या होता है, बड़ा होता है, हाँ, तो वो कम लाइट को भी ये करते रहते हैं। व्हाट इज आइरिस? आइरिस इज अ लार्ज मस्कुलर डायफ्राम। ओके, मस्कुलर डायफ्राम ऐसा होता है ना आँख का, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे जो ये लेंस है यहाँ पे। सिमिलरली इफ इट इज ए आई, ये आपका ऐसा होता है। सो these are the iris, the muscular diaphragm that control the size of the pupil. I hope you can feel it. Very good, very nice, very good. Now next our topic is pupil. मतलब pupil मतलब वो लेंस जो जहाँ से ओपनिंग है, ये is called the pupil. This is called pupil. Now let us read about it. Shall I rub this one? Okay. So I hope the cornea is clear, lens is clear, iris is clear. Now let us go to the next part, that is what? Pupil of the eye. So very good. Next point is what? Pupil. What is pupil? It is the window of the eye. Very good. जैसे लाइट घुसता है ना अंदर पे, window. So it is the central aperture in the iris. हम लोग का जो iris का बीच, ये जो आँख है, ओके, ये जो आँख है आपका, ये तुम्हारा iris है। iris का जो बीच में एक जो नहीं होता है कि नहीं, एक ब्लैक कलर का, that is your pupil, and it is the central aperture in the iris. ये iris का central aperture है, ये है पार्ट, ये है। Next is what is the function? हमको function भी लिखा दे रहा है आपको। If somebody asks what the function of it, 1 mark, you can write this one. Its function is what? It regulate and control. It regulate and control the amount of light entering in the eye. कितना हिसाब का लाइट घुसना है, उसको वो मैनेज करता है। उसको रेगुलर मतलब क्या है, उसको ताल मिलाता है, उसको मतलब मैनेज करता है। रेगुलर मतलब मैनेज करना, हर एक मीनिंग का वर्ड है, मतलब हर एक वर्ड का मीनिंग है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रेगुलर मतलब क्या है, उसको मैनेज करना। कंट्रोल मतलब उसको क्या करना, उसको हिसाब मात्रा मतलब ये करना है कि नहीं, मतलब लगभग दोनों रिलेटेड है वर्ड जो। क्लियर? वेरी गुड। आवर नेक्स्ट टर्म विल बी रेटिना। व्हाट इज रेटिना? रेटिना इज द डेलिकेट मेम्ब्रेन। व्हाट इज रेटिना? डेलिकेट मेम्ब्रेन, जहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। ओके, सो कम राइट डाउन रेटिना। नाम बढ़िया है ना रेटिना, सुंदर लगता है ना रेटिना। सो देखो, इट इज द डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग न्यूमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। What is retina? Retina, it is a delicate membranes having numerous number of light sensitive cell. What is there? Retina? Lots of cells are there. Okay, these are very sensitive cell and they are very sensitive to light. अंधेरा में इतना sensitive नहीं होता है, but when it is exposed to light, it is very sensitive. It creates a sensation in our eye for vision or for looking the object, to know the object what is it actually. Clear, my dear? Okay, very good, very fantastic. So very fun. ये है sensitive cell. So next point, that is a far point. Do you know what is the normal point of human being? Means normal distance of the human vision क्या है? 25 centimeter. Means at 25 centimeter. Let me, if it is scale, ये 30 centimeter का scale है कि नहीं? 30 centimeter का scale है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को एकदम clearly, focusedly, without any troublesome, we can see the object, है कि नहीं? इतना तक हम लोग ऐसा नहीं है कि इतना नहीं देख सकते, तकलीफ होगा थोड़ा सा। देखो, you cannot do the task for a long time. It will start paining. Okay, so our normal distance is what? Normal for eye vision is what? is ना, इसमें कुछ पेन नहीं होगा, you can read also, you can do any task. But when it closer, it मतलब संडे लोग एक्सपेरिमेंट किए
कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम नहीं देख सकते, तुम देख सकते हैं, नहीं देख सकते क्या, देख सकते हैं और भी देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट सी, थोड़ा तुम लोग स्ट्रेस फील होगा, थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील होगा, देखो करके तो दर्द होगा आँख में, ज़्यादा देर तक नहीं देख सके, देखो थोड़ा सा अलग सा मतलब अनकम्फर्ट फील होगा आपको। ओके, क्या ऐसा कोई पढ़ता है ऐसा करके, है क्या, जो डिफेक्टिव पर्सन का अलावा। क्लियर, ओके, वेरी गुड। सो आइए आप लोगों का क्वेश्चन आएगा नहीं आप दिमाग में, सर कैमरा में हम लोग ऐसा क्यों कर देते हो, वही तो क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, इट्स नॉट इट। बट कैमरा से हम लोग किसको देख रहे हो, दूर सामान देख रहे हैं, है ना, जूमिंग लेंस से क्या कर रहे हैं, दूर सामान देख रहे हैं हम लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास में, बाइनोकुलर में, कहाँ देख रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं मानता है, लेकिन वहाँ से उसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग दूर का सामान देख रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, देखो कितना क्रिटिकल क्वेश्चन है, हम सोचा भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, है कि नहीं। इफ इट इज सजेस्टेड टू सी एन any object at 25 centimeter, then why do we see the binocular, telescope, camera by taking in front of the eye? करते ना, और हम लोग कुछ निशानी मारता, देखो ऐसा करता है कि नहीं, तो हम लोग आँख सामने क्यों लेते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। सो हाउ विल यू आंसर इट? हाँ, या we take it closer, not looking that object. Through the telescope, we are not looking the telescope, we are looking through the telescope. ये हो गया चश्मा का केस, हम चश्मा को देख रहे हैं क्या, चश्मा से तुमको देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? My objective is not to see my speck, my intention is to see you. तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है यू गॉट द आंसर और नॉट। तो हम लोग लगता है कि सामने ले रहा है, लेकिन हम लोग टेलीस्कोप, बाइनोकुलर और सबको नहीं देख रहे हैं, वी आर लुकिंग थ्रू इट। दैट मीन्स आवर मेन ऑब्जेक्ट इज नॉट टू सी द स्पेक, आवर इंटेंशन इज टू सी द थिंग दैट इज बियॉन्ड द स्पेक। सिलरी मसल देखो क्या है, द मस्कुलर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट होल्ड द लेंस प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एनी डिसलोकेशन। क्या है, ये एक मस्कुलर पार्ट है हम लोगों का, जो हम लोगों का लेंस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ताकि कुछ की झट लगने से भी निकल ना जाए, मतलब इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क, मतलब उसको अच्छा सा फ्रेम प्रोवाइड करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि उसको हम लोगों को कुछ भी डिसलोकेशन हो, कुछ भी इंजुरी हो, सडन जार्क हो, मतलब वो निकल ना जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो, सर ये हमें से याद, ये क्लियर हो गया है कि नहीं। सर नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग पता है, व्हाट इज डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई? कितना है डायमीटर? हाँ, इट इज़ योर 2.3 सेंटीमीटर। कितना है एवरेज एडल्ट का? 2.3 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया? तो देखो डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज व्हाट, और आई बॉल इज व्हाट, 2.3 सेंटीमीटर। एक नोट लिख लो कि डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज हाउ मच, इज 2.3 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम माय डियर? ये चीज़ को गार्ड बन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये आ सकता है। तो अगर इफ 2.3 सेंटीमीटर रेडियस कितना होगा इसका? 1.15, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन आई। हाउ डज इट वर्क? 5 मार्क आ सकता है ऐसा, ठीक है। बहुत दिन से नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो पता हो गया क्या बोलना चाहता है कि नहीं, बहुत दिन से नहीं आ रहा है। तो अब जब आएगा ना 5 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क तक आता है। सो हाउ डज द ह्यूमन आई वर्क? बिकॉज वी नो कैसे ऐसा जब है, बोलना ईजी है, लेकिन वो चीज़ को लिखना ना, देखो तुम ना दोस्त को जहाँ बहुत कुछ बोल सकते हैं ना, वो चीज़ लिखो तो तुम वो चीज़ तुम लिखो और वो चीज़ स्टेप जगह हो तो बहुत फर्क होता है, कापेगा वो चीज़ बोलने के लिए, ठीक है। हम जैसे क्लियर है, कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकता है, वो चीज़ लिखने के लिए तकलीफ होता है। तो ये लिखना और बोलना बहुत फ़र्क होता है, क्लियर हो गया ना। करना और सुनाना बहुत फर्क होता है, समझ में आया कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी ईजी है, लेकिन वही वर्ड लोगों का मैन पंचिंग, जैसे कि पंचिंग मोड क्या है, जैसे यहाँ पे देखो ऑप्टिक नर्व पंचिंग मोड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिग्नल्स पंचिंग मोड है, इंटरप्रीट सिग्नल्स दिखाएगा, और भी हाँ इल्यूमिनेशन है कि नहीं, इल्यूमिनेशन, जनरेट सिग्नल्स, तो ये सब एंटरिंग, ऐसा रिफ्रैक्शन, ऐसा पंचिंग मोड है। उस इट मेक ए कंप्लीट सेंस एंड कंप्लीट आंसर। तो you need to word these words, okay. So let us start with the beginning. Very nicely I have written this one. So light enters the eye from a very first step कहाँ पे है, light enters the eye from the thin membrane called the cornea। तो हम बोला था ना कि अगर ये आँख है, ध्यान मिल रहा है, ये आँख है कि नहीं, तो कहाँ से निकल रहा है, लाइट यहाँ से आ रहा है कि नहीं, तो कॉर्निया से पहला गुजर रहा है लाइट जो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, याद रहेगा, ये याद हो गया, वेरी गुड। लाइट एंटर्स द आई फ्रॉम ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द cornea. Most of the refraction of light entering the eye
ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. कहाँ पे होता है? आउटर सरफेस, मतलब कॉर्निया का बाहरी मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है. क्लियर है? लाइट का रिफ्रैक्शन. द क्रिस्टल लेंस, कहाँ लाइट कहाँ पहुँचता है? अभी लेंस में, अभी लेंस पे पहुँच रही है ना यहाँ पे. वेरी गुड. So what the crystalline lens merely provide the finer adjustments of the focal length required to focus object at a different distance of the retina. तो अगर दूर ऑब्जेक्ट है तो फोकस करना पड़ेगा उसको रेटिना में. अगर सामने है ऑब्जेक्ट देन ऑल्सो यू नीड टू फोकस ऑन द रेटिना. मतलब इसको ऑटोमेटिक जैसे भी हो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो उसको थोड़ा अपना ऑटो फोकस में मोड में करना पड़ेगा. तो वो कौन करता है? लेंस करता है. लेंस के साथ में आइरिस वाइरिस मिल के सिलरी मसल सब मिल के एडजस्ट करते हैं जिसको. क्लियर है कि नहीं? ओके फाइन. सो वेरी गुड. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? देन प्यूपिल. प्यूपिल जो कि हम लोग लाइट को कितना फोकस होना है, मतलब कितना लाइट घुसना है, अपर्चर कितना होना है, समझ में सब वो डिसाइड करता है प्यूपिल जो विद द हेल्प ऑफ आइरिस. ओके. द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. तो प्यूपिल क्या करता है? वो हिसाब निकाब करता है कि कितना लाइट घुसना है, अंदर है तो ज़्यादा लाइट घुसना है, कॉर्निया को क्या होता है ना, प्यूपिल को बढ़ा देना है. सो इट डिसाइड एवरीथिंग कि कितना लाइट घुसना है नहीं घुसना. मीन्स लाइट का सब मतलब कहानी ये कंट्रोल करता है, प्यूपिल कंट्रोल करता है. वो कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग प्यूपिल. एक मार्क क्वेश्चन आ सकता है ऐसा करके. कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस मसल. आइरिस बाद में हो गया तुम्हारा यहाँ पे सिलरी मसल. तो आपको ये बोलना होगा प्यूपिल इसका आंसर. ओके. देखो यहाँ से भी एकदम और क्वेश्चन का निकल सकता है यहाँ से भी. ठीक है. बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे भी छुपा हुआ है. क्लियर. नेक्स्ट इज द ह्यूमन लेंस फॉर्म ए इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. तो बंदे क्या होता है कि वो यहाँ पे जो भी लाइट पास होता है उसका ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनता है? रेटिना में बनता है. जो भी उल्टा बनता है दैट मीन्स रियल और इन्वर्टेड बनता है. इसके बाद क्या होता है? द लाइट सिग्नल जब अभी पहुँच गया बन गया इमेज है कि नहीं? बनने से क्या हो गया? एक मुर्दा आँख में तो बन रहा है ना इमेज. लेकिन देख पा रहा है, वो फील कर पा रहा है. सिर्फ दिखने से काफ़ी नहीं, उसको हाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाना है? ब्रेन तक पहुँचाना है. और हाँ ये हम तुम लोगों को देख रहे हैं, ये फैन घूम रहा है यहाँ पे. अंडरस्टूड और नॉट? सो वही फाइनल पॉइंट वहाँ पे. ठीक है. द क्या बोला यहाँ पे? देखो ध्यान से. यहाँ पे द लाइट इधर हो गया. वेरी गुड. तो क्या हुआ? द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन द इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन मतलब क्या है? कि जब जागृता. इल्यूमिनेशन जब इल्यूमिन मतलब क्या? इल्यूमिन मतलब क्या है? लाइटिंग, लाइटेड. दिस रूम इज इल्यूमिनेटेड मतलब लाइटेड, ब्राइटेड है. यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रकाशित होना, इसको बोलते इल्यूमिनेशन. समझ में आया कि नहीं? तो देखो जब लाइट गिरा है यहाँ पे बहुत सारा सेल होता है कि नहीं? लाइट सेंसिटिव सेल. एंड इट गेट इल्यूमिनेटेड. वो क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया और जागृत हो गया थोड़ा सा. समझ में आया कि नहीं? वो यहाँ पे बोला है कि द लाइट सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट ए इलेक्ट्रिसिटी. चिंग. तो क्या होता है? एक स्ट्राइक, एक स्पार्क होता है वहाँ पे. यहाँ पे क्या होता है? एक चिंगारी जलता है, चिंगारी चिंग करके. और वो स्पार्क ऑप्टिक नर्व का द्वारा आपका ब्रेन में पहुंचा जाता है. ठीक है. अब क्या कर देता है? ऑप्टिक नर्व का द्वारा. क्या नर्व? एक क्वेश्चन आ सकता है एक मार्क का. विच नर्व हेल्प्स टू सेंड द सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन? ऑप्टिक नर्व. और ऐसे हो सकता है व्हाट इज ऑप्टिक नर्व? ऑप्टिक नर्व इज ए नर्व दैट ट्रांसमिट द सिग्नल, द इमेज सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन टू एनालाइज. समझ में आया कि नहीं? ऐसा आ सकता क्वेश्चन आप लोगों को. द ब्रेन. आयो ब्रेन का काम भी है. सिर्फ पहुंचना तो काफ़ी नहीं है ना, उसको सोचना ही पड़ेगा ना, इन्फॉर्मेशन एनालाइज करना पड़ेगा. सो व्हाट? द ब्रेन इंटरप्रेट. अच्छा वर्ड है ये, पंचिंग वर्ड है ये, लिखना पड़ेगा आपको. द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल. मीन्स इंटरप्रेट मतलब क्या? उसको एनालाइज करता है, उसको पहचानता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, उसको बोलता है इंटरप्रिटेशन. याद रहेगा? ओके. द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल and these signals are sent to the brain, and interpret these signals and finally produce the information so that we perceive object as they are. मतलब क्या करता है? उसको ब्रेन को एनालाइज करता है, सोचता है, एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. उसको फाइनली प्रोसेस कर लेता है कि ये क्या है? फूल है ना, टॉयलेट है ना, घर है ना, बंगला है. अपने तो उसको समझ में आ रहा है. फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट हम लोग उसको पहचान सके कि एक्चुअली हम देख रहा क्या है, व्हाट एक्चुअली आई एम सीइंग. उसका अल्टीमेटली हम लोग को फाइनल इन्फॉर्मेशन देता है. हाँ तुम ये देख रहे हैं, ये लुकिंग है लोटस फ्लावर, ये लुकिंग है बॉय, ये लुकिंग है फैन. ऐसा टाइप का समझ क्लियर हो गया कि नहीं? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है. एटलीस्ट तुम अगर सेंटेंस भूल ही गया, वर्ड लोगों तो लिखना होगा. ठीक है. और इसमें मार्क होते हैं योर वर्ड पावर. ओके फाइन, वेरी गुड. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज योर डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई. क्या पढ़ेंगे हम लोग? द वेरियस डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई. व्हाट आर द वेरियस डिफेक्ट्स आर प्रोसेसिंग बाय द ह्यूमन बीइंग थ्रू द लाइफ टाइम. ठीक है. तो थोड़ा डेमो बोल देता आप लोगों को. पहला डिफेक्ट है, देयर इज ओनली 3 डिफेक्ट. इफ यू गो हायर क्लासेस
जब न्यूरो साइंस पढ़ेगा, आँख के बारे में डॉक्टर बनेगा, तब यू नीड टू लर्न मोर, आँख के बारे में और बहुत सीखना होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, तो ए भी नहीं है साइंस का ये बोलने से, ठीक है। यू नीड लर्न मोर ब्रॉड। So basically in your book class 10 mathematics science there is three type of defects are provided. First is cornea, first is myopia, second is hypermetropia, third is presbyopia, है कि नहीं? And I already told you कि myopia क्या है? हाँ, मेरा प्यार सामने है means what means person who can see the nearby object, जो सामने वाला सामान को देख पाता है, लेकिन दुर्गा सामान को देख मतलब अच्छी टक से क्लियरली, ऐसा नहीं है कि काला काला दिखाई मिलेगा उसको, लेकिन ब्लर, नॉट क्लियरली एज लाइक द नियर बाय ऑब्जेक्ट, इसको मायोपिया याद रहेगा। नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया, योर वर्ड्स मैटर, जानना काफ़ी नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना ही रियल क्वालिटी है इंसान का। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या, उसका अपोजिट, हु कैन सी द फादर ऑब्जेक्ट, अ फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली मीन्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट सो क्लियरली, इसको व्हाट हाइपरमेट्रोपिया। हम लोग भी सीखेगा कि क्या व्हाट लेंस आर यूज टू क्योर दिस डिजीज, वो भी सीखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। विद ए वैलिड रीजन आई एम गोइंग टू शो यू, क्यों वो लेंस से क्यों पहनते हैं हम लोग, उल्टा पलटा चश्मा पहनने से क्यों नहीं काम करेगा ये भी क्वेश्चन है। ओके, क्या पावर का लेंस पहनना है, नाउ आपका वो पावर ऑफ द लेंस यहाँ पे काम आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, पावर ऑफ एकोमोडेशन। द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन मीन्स व्हाट, एडजस्ट करना। क्या करना, एडजस्टमेंट। इफ दिस वर्ड यू कैन रिमेंबर देन इजीली यू कैन रिमेंबर द होल सेंटेंस। क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन्स क्षमता, एडजस्ट करने का क्षमता। आँख का भी एक ऑटो फोकस है कि नहीं, ऑटो एडजस्ट करते हैं वो खुद ब खुद करते हैं ऑटो एडजस्ट। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड व्हाट, पावर ऑफ एकोमोडेशन। वेरी सिंपल ना, बहुत बार आ जाता है एक मार्क का, लेकिन लिख नहीं पाता है बच्चा, भूल जाता है, इंपॉर्टेंट सोचता ही नहीं चीज़ को। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव दिस स्पेशल प्रॉपर्टी। ओके, when you bring the closer the pen, तुम लोग ब्लर हो गया, देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है ना। नाउ आई एम लुकिंग यू, ये ब्लर हो गया, इसको हम नोटिस ही नहीं कर रहे, देखो तो, है कि नहीं। इट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, मीन्स द एबिलिटी, क्षमता, आँख का क्षमता एडजस्ट करने का, समझ में आएगी नहीं। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। याद नहीं रहेगा, हो गया आराम से, वेरी गुड। तो जब देखो, जब ये काम नहीं करता है एडजस्टमेंट, तभी डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट क्या होता है, इसलिए तो देखो कभी फोटो खींचते, फोटो सब लोग खींचते कि नहीं, तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एक नॉर्मल बिगिनर फोटोग्राफर में क्या अंतर है। वही सेम मोबाइल लेके बाप 2-3 लाख का कैमरा खींच दिया, तो वो क्या जरूरत है उस प्रोफेशनल फोटोग्राफर का, बोलो। कैमरा तो कोई सोचता नहीं, सोचता ना कि DSLR होने से हो गया, मेरे पास आईफोन होने से हो गया, अरे खींचेगा ना मेरी डायरेक्ट। तो आप लोग करते नहीं, 15 साल 20 साल उसमें भी एक्सपीरियंस होता है फोटोग्राफी का, है कि नहीं। कोई आदमी शादी में तो अपना भाई से करा था फोटोग्राफी, क्यों 4-5-12-25 हज़ार से फोटोग्राफर ला के फोटो खींचता तो, हाँ कैमरा होने से तब कैमरा खरीदा तो, हाँ वही चीज़ है। मेन थिंग इज है द नॉलेज ऑफ लाइट, मेन थिंग है कैमरा का फोटोग्राफी मतलब क्या है, द नॉलेज ऑफ लाइट, हाउ डू द लाइट्स वर्क्स, वो लाइट कैसे काम करते हैं, उसका प्रॉपर्टी अगर अच्छा से मालूम होगा ना, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, कैसा रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ पे कैसा होगा, लाइटिंग कैसा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ब्लर क्यों होता है, कैसा होता है, सब बन जानता है वो चीज़, बिकॉज ही नो द पूरा कंसेप्ट ऑफ द लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, 1.5 mm का ना, 50 mm का ना, 300 mm का, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ना बच्चों। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है हम लोगों का। जब देखो फोटो खराब क्यों होता है, जब हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे फोकस के पीछे में उसका पीछे फोकस हो गया, तो हीरोइन हम लोग का जो है मॉडल वो क्या वो खत्म, उसका मुंह ऐसा हो गया, है ना। सो तो हम लोग कैमरा फोटो जाते में क्या हो गया, खराब हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही सेम हम लोग आँख में भी ऐसा होता है, जब हम लोग आँख का तो खुद नहीं कर सकते ना एडजस्ट में, वो खुद एडजस्ट होता है ना, वो तो ऑटोमेटिक होता है ना। तो जब ये ऑटोमेटिक वाला काम थोड़ा कम जाता है, मतलब ड्यू टू अकॉर्डिंग द एज और लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन अ बॉडी, कैलोरीन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, आयोडीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, तब क्या होता है दिमाग अपना क्या करता है, अपना ब्रेन, अपना आँख क्या करता है, कुछ अलग रंग दिखाना शुरू कर देता है, अच्छा से काम करना शुरू नहीं करते, समझ में आ रहा है कि नहीं। ड्यू डिफेक्ट ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, और ऑल्सो ड्यू टू द एज ऑल्सो ये डिफेक्ट शुरू होते हैं। जब एडजस्ट अच्छा से नहीं होता है तो क्या होता है कि ये सब बीमार होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। यू कैन सी इन द ओल्डर पर्सन, कभी देखो आँख का समय पूरा वाइट होता है, मिल्की होता है, मिल्की, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या होता है उसको, कैटरैक्ट, ठीक है। और कैटरैक्ट होता है, तो कैटरैक्ट को भी रिमूव कर सकता है बाय द
कैटरेक्ट सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव होता है वो चीज़ भी. ओके, कैटरेक्ट सर्जरी यू कैन सी मेनी पीपल. ये पूरा कैसा होता है, क्लाउडी हो जाता है उसका आँख का सामने में, डर लगता है देख के. ओके, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैटरेक्ट. So what is the cataract? I have written the definition here. The crystalline lens of the old person. जब आदमी बूढ़ा होता है, क्या होता है? जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका आँख का सामने में क्या होता है, पर्दा का सामने में? Yeah. Miss, what is cataract? The crystalline lens of the old person become milky and cloudy. In this condition is called cataract. This condition is called cataract. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ है कि नहीं? या फिर जब आँख होता है इंसान का, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा मानो कि अब आगे में क्या होता है कि छन्ना छन्ना हो जाता है, क्लाउडी कलर होता है. आप देखोगे गांव में जाकर तो कैसे बुढ़ा हुआ ऐसा कुछ है कि नहीं. सो इसको आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं थ्रू सर्जरी कॉल कैटरेक्ट सर्जरी. ठीक है, और जिसका इंसान का कैटरेक्ट होगा तो क्या हो सकता है, उसका क्या क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वो कम दिखेगा या फिर वो बिल्कुल नहीं दिखेगा. समझ में आ रहा है क्या? द पर्सन हु इज प्रोसेसिंग और हु इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, what can be the problem occurs with this person? The person can partially lose the vision or completely lose the vision. समझ में आया कि नहीं? And it can be, the problem can be solved by the method called the cataract surgery. याद रहेगा यह चीज़ का? Will you remember this one? Very good. So write this point also. ये point को लिख लो कि these causes partial or complete loss of vision. These problem या फिर this causes partial or complete lose of what, vision. इंसान पूरा अपना दृष्टि, अपना पूरा मतलब आँख का कायरा ख़त्म कर सकता है मतलब. तो इसका एक ये भी है कि इट इज़ पॉसिबल टू, इसका पॉसिबिलिटी है कि नहीं? हाँ, इट इज़ पॉसिबल टू, आजकल पॉसिबल है, इतना इक्विपमेंट निकल गया. It is possible to restore, लिखो, it is possible to restore vision through a restore vision. vision मतलब क्या? दिखने का शक्ति. vision through what? Through cataract surgery.